اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ دن پہلی بڑی افسوسناک خبر اس وقت گوا سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، شمالی گوا کے ارپورا میں ایک گوا نائٹ کلب ہے۔ اس کلب میں بھیانک آگ لگی اور وہ آگ اتنی خوفناک اور بھیانک تھی کہ 25 لوگوں کی موت ہو گئی، 6 دیگر اور بھی لوگ زخمی ہیں۔ کلب کا مینیجر اور عملے کے 4 ارکان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں 4 سیاح یعنی ٹورسٹ بھی شامل ہیں، جبکہ 6 دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ابتدائی تحقیقات سے یہ معلوم ہوا ہے کہ آگ LPG سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے، تاہم کچھ عینی شاہدین اور متضاد رپورٹس آتش بازی کے استعمال کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے۔ کچھ کہہ رہی ہے کہ بھئی سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے آگ لگی، اور کچھ بتا رہے ہیں کہ آتش بازی کی وجہ سے وہاں پر آگ لگی ہے۔ گوا پولیس نے اتوار کی صبح اپنے بیان میں کہا کہ شمالی گوا کے ارپورا میں برچ بائے ریلیمیولین کوئی نائٹ کلب کا نام ہے، وہ وہاں پر آگ لگی جس میں 25 افراد ہلاک ہوئے ہیں، اور ان میں 4 سیاح اور 14 عملے کے ارکان شامل ہے، جبکہ 7 افراد کی شناخت ابھی بھی باقی ہے۔ آئیے ناظرین، آج پارلیمنٹ میں خبر آ رہی ہے کہ آج پارلیمنٹ میں وندے ماترم پر گرما گرم بحث ہوگی۔ جی ہاں، بے روزگاری پر نہیں ہوگی، ووٹ چوری پر نہیں ہوگی، جی ہاں، کسانوں کی، شیتکریوں کی آتم ہتیا پر نہیں ہوگی، مہیلاؤں کے ریپ پر نہیں ہوگی، بڑھتی مہنگائی پر نہیں ہوگی۔ آج پارلیمنٹ میں گرما گرم بحث وندے ماترم پر ہوگی، کیونکہ وندے ماترم کا اگر مسئلہ حل ہو گیا تو بے روزگاری ختم ہو جائے گی، ریپ ختم ہو جائے گا، مہنگائی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے آج پارلیمنٹ میں وندے ماترم پر گرما گرم بحث ہوگی، اور وزیر اعظم پرائم منسٹر نریندر مودی نے نئی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے 8 مقررین دلیلوں کے ساتھ بولیں گے۔ آئیے ناظرین، بہار کی راجدھانی پٹنہ سے خبریں آ رہی ہے۔ جی ہاں، پٹنہ میں بلڈوزر کی کارروائی دھوم سے شروع ہو گئی، اور صرف پٹنہ میں نہیں، بہار میں، یعنی وہ 10,000 روپے جو دیے گئے تھے پورے سود کے ساتھ وصول کیے جا رہے ہیں، اور لوگ باقاعدہ وہاں پر اب بی جے پی کو کوس رہے ہیں، مگر اب کوس کر کوئی فائدہ نہیں۔
जी हाँ, बड़ी तादाद में बिहार के मुस्लिम पार्टियों को भी कोस रहे हैं, जिन्होंने वहां पर आकर उनको सपने दिखाया था कि अब्दुल्ला का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, उमर का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। जी हाँ, अब वो अब्दुल्ला के बेटे को मुख्यमंत्री बनाकर लौट गए हैं, हैदराबाद चले गए हैं। तो अब लोग वहां पर कह रहे हैं, उनको भी कोस रहे हैं, और बाकायदा हिंदू मुसलमानों में नफरतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और कुछ लोग तो बाकायदा मुसलमान को, दाढ़ी टोपी वालों को मारते हुए, ताना देते हुए कह रहे कि भैया वो जो मुख्यमंत्री तुमको बनाने आया था, वो जो तुम्हारा लीडर आया था, उसको पकड़ कर लाओ और कहो कि हमको बचा। खैर क्या करें, मुसलमानों को पहले समझाओ तो समझ में नहीं आता है। जी हाँ, मुसलमानों की राजनीति सिर्फ मुसलमानों के नाम पर नहीं हो सकती। इस मुल्क में कभी सिर्फ हिंदू के नाम पर राजनीति नहीं हो सकती, मुसलमान के नाम पर राजनीति नहीं हो सकती। हिंदू के नाम पर राजनीति करने में तो शरीर पार्टियां कामयाब हो चुकी है, क्योंकि वो 85% है, 86% है। लेकिन 14% को आप अलग थलग करने की कोशिश करोगे तो याद रखो ये 14% को नुकसान ही होगा। इसलिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, जी हाँ, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना हुसैन अहमद बदनी और तमाम उलमा ने हिंदू मुसलमानों को एक साथ करके ही अंग्रेजों से भी मुकाबला किया था और हिंदू मुसलमानों को एक करने की राजनीति की थी। इसलिए मुसलमानों समझो कि जो तुमको सिर्फ मुसलमान के नाम पर अलग करके राजनीति कर रहा है, वो कहीं ना कहीं किसी से जबरदस्त अंदाज में मिला हुआ है। और अब 21 मुसलमान जीतते थे, 9 मुसलमानों पर बात आकर रुक गई। और अब जो हाल बिहार में मुसलमानों का किया जा रहा है, ये जो बुलडोजर कार्रवाइयां हो रही है, देखिए लगातार खबरें आ रही है कि बुलडोजर कार्रवाई, अच्छा ठीक है ना, बुलडोजर कार्रवाइयों से हम तो परेशान हैं, लेकिन अब वो अंधभक्त, वो गोबर भक्त भी परेशान हो रहे हैं, जिन्होंने धर्म के नाम पर बीजेपी को ओढ़ दिया था। आइए नाज़रीन, अब मगरिबी बंगाल से खबर आ रही। जी हाँ, बंगाल में भी अब इलेक्शन होने वाला है। तो हमारे साहब जो है, जैसे बिहार में खराबा कर चुके हैं, अब बंगाल में भी जाने वाले हैं। और उनसे पहले उनके और भी सब लोग जोड़ीदार पहुंच गए हैं। अब ये खबर देखिए, कितनी डेंजर खबर बंगाल से आ रही है कि मगरिबी बंगाल मजहबी पोलराइजेशन, यानी धर्म के नाम पर अलग होने के नरगे में चला गया है। वहां पर गवर्नर सीवी आनंद बोस, उनकी क़यादत में कोलकाता में गीता पाठ किया गया। ये सब जितने पाठ होते हैं और ये जितनी रैलियां होती है, ये किस लिए होती है? हिंदू मुसलमानों को अलग करने के लिए। तो जनाब, ये कोलकाता में जो गीता पाठ हुआ, इसमें हजारों का हुजूम, लाखों का हुजूम उमड़ा। अब बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गई है। यानी बीजेपी ने अपना कार्ड, और बीजेपी अक्सर कार्ड उनके धर्म गुरुओं को लेकर खेलती है। जैसे एक अभी पहले 2014 में काना बाबा, जी हाँ, जो योगा सिखाता है, उसको इस्तेमाल की थी। फिर अभी वो कौन सा, वो जो चिट्ठी निकालता है, अभी उसको इस्तेमाल कर रही है। और अब ये मगरिबी बंगाल में शुरू हो गया है। तो अब ये तो हिंदुओं को और टीएनए आपस में लड़ाने की राजनीति, सेकुलर हिंदू और कट्टर हिंदुओं को अलग करने की राजनीति बीजेपी कर रही है। अब बचे मुसलमान जो सेकुलर पार्टी को मजबूत करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत जल्द जो है बिहार का इलेक्शन हो गया है। अब हमारे हजरत को वहां मगरिबी बंगाल में भेजा जाएगा। यानी इधर बिहार में उन्होंने अब्दुल्ला के बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया, अब बंगाल में जाकर वो उमर के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ईरान बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आज और आइंदा कल, यानी 2 दिन लोकसभा में अहम मुद्दों पर, अहम मुबाहसों में खिताब करेंगे, बोलेंगे। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट और लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यानी अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और कांग्रेस एमपी प्रियंका गांधी आइंदा 2 दिनों में पार्लियामेंट में एनडीए यानी बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाएंगी। पार्टी जराए के मुताबिक खबरें आ रही है कि राहुल 9 दिसंबर को होने वाली इंतखाबी इस्लाहात पर बहस में हिस्सा लेंगे। इलेक्शन में जो वोटिंग चोरी वगैरह मामला, उसमें बोलेंगे, जिसमें वोटर लिस्टों की मुतनाज़े एसआईआर का मामला भी शामिल होगा। और आज यानी 8 दिसंबर को प्रियंका गांधी
कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने पर होने वाली बहस में खिताब करेगी, जिसकी क़ियादत खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे। यानी ये पार्लियामेंट के लिए बड़ा शुभ दिन होगा कि खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में मौजूद रहेंगे, वरना वो पार्लियामेंट में भी नहीं रहते हैं और पत्रकारों के सामने तो कभी भी नहीं आते हैं। बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ, आज से महाराष्ट्र के नागपुर में भी इजलास का आगाज। कौन सा इजलास? जी हाँ, विधान भवन का, विधानसभा का इजलास शुरू होने जा रहा है और इजलास से पहले ही सियासी माहौल गर्मा गया है। वजीर आला फडणवीस ने, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपोजिशन पर सख्त तनकीद की। अपोजिशन फिलहाल बेसिमत है और उसके पास कोई ठोस मसाइल नहीं है, ऐसा फडणवीस का कहना है। लेकिन इतने ठोस मसाइल है फडणवीस कि तुम उसका जवाब भी नहीं दे पाते हो, तुम सिर्फ धांधली करते हो। खैर, हुकूमत को अपोजिशन लीडर का ऐलान करने का हक नहीं है, यह हक स्पीकर और सदर का है। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने यह बात कही है, जबकि अपोजिशन का यह कहना है कि अपोजिशन का लीडर तय किए बगैर बहस होना यह संविधान का भी अपमान है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ, इंडिगो एयरलाइंस 3 दिन से आप मुसाफिरों की बदहाली और बुरा हाल देख रहे हो। एयरपोर्ट पर कैसे लोग परेशान हैं वो देख रहे हो। जी हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो कुछ भी हो सकता है। अब खबरें आ रही है कि इंडिगो एयरलाइन का सिस्टम अभी तक नहीं सुधरा, बहरान परेशानियां अभी भी जारी है और 650 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई, कैंसल कर दी गई और हालात बता रहे हैं कि फौरी तौर पर बेहतर होने वाले नहीं। 10 दिसंबर तक नेटवर्क मुस्तकम हो सकता है, सुधर सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन सैकड़ों की तादाद में परवाजें आज भी रद्द हुई है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर मुसाफिर परेशानियों में मुब्तला नजर आ रहे हैं। कई मकामात पर मुसाफिरों का गुस्सा भी फूटा है और सोशल मीडिया पर बड़ी तादाद में शिकायतें भी देखने को मिल रही है। दिन बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ, खबर आ रही है कि आखिरी जो डेडलाइन थी उम्मीद पोर्टल पर वक्फ इमलाक को रजिस्टर्ड करने की, अब वो उम्मीद पोर्टल बंद हो गया। डेडलाइन के साथ ही उम्मीद पोर्टल बंद हो गया। जी हाँ, हिंदुस्तान में वक्फ इमलाक के इंतजाम के लिए शुरू किए गए मरकजी पोर्टल उम्मीद की आखिरी तारीख गुजर चुकी है। अब पोर्टल पर कोई भी नई प्रॉपर्टी अपलोड नहीं की जा सकती, ताहम पहले से अपलोड करदा प्रॉपर्टीज की तस्दीक का अमल जारी है। कोई नई प्रॉपर्टी अब अपलोड नहीं की जाएगी। अब खबरें आ रही है कि जिस तरीके से डेडलाइन दी गई थी किसी भी तरीके से उसको बढ़ाया नहीं गया, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जमीयत उलमाए हिंद और तमाम तंजीमों ने दरखास्त की थी कि रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसी की जाए, बढ़ाया जाए, मगर डेडलाइन बढ़ाई नहीं गई। दिन बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ, औरंगाबाद से खबर आ रही है। आप जानते हैं कि नगर पालिका नगर परिषद का इलेक्शन हुआ और अचानक 20 दिन बढ़ा दिए गए रिजल्ट के ऐलान के, नतीजे के ऐलान के 20 दिन डायरेक्ट बढ़ा दिए गए। अब 20 दिन में क्या क्या होगा, कितने घपले होंगे, सब लोग परेशान हैं। तो खबरें आ रही है कि उम्मीदवारों के कारकुनान बेचारे स्ट्रांग रूम पर पहरा देने पर मजबूर हो गए हैं। रात रात भर वो वहां पर बैठ रहे हैं। और ये भी खबर आ रही है कि खुलदाबाद वाक़े के बाद जिला भर यानी औरंगाबाद जिला भर के स्ट्रांग रूम पर शुबहात का शिकार कारकुनान सख्त निगरानी में लग गए हैं, क्योंकि सबको लग रहा है कि इन 18-20 दिनों में मशीनों में बड़ा गेम किया जा सकता है और मशीनों को इधर से उधर सप्लाई भी किया जा सकता है, जैसा पहले भी होता रहा है वोट चोरी। तो उम्मीदवारों के कारकुनान रात रात भर वहां पर पहरा देने पर मजबूर हैं। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर मेरे अपने शहर जलगांव की और मेरी अपनी बिरादरी खाटिक समाज बकर कसाब बिरादरी की है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल हमारे तांबापुर का जो इलाका है वहाँ पर हमारे सादिक मेंबर साहब है और याकूब भाई है और उनकी पूरी टीम, जी हाँ,
यशस्वी फाउंडेशन, अनवर सर वगैरह पूरी टीम है, यशस्वी फाउंडेशन उन्होंने बनाई है और यशस्वी फाउंडेशन के जरिए से वो बड़े अच्छे अच्छे समाज सेवा के काम कर रहे हैं। गुज़िश्ता कल उन्होंने एक बहुत प्यारा काम किया जिससे पूरा जलगांव जिला खुश हो गया और पूरी बिरादरी खुश हो गई। वो काम उन्होंने ये किया कि गुज़िश्ता कल यशस्वी फाउंडेशन के बैनर तले एक ऑल मुस्लिम समाज इज्तिमाई शादियों का पहला प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें काकर, शाह, खाटिक, मंसूरी, पिंजारी यानी तमाम बिरादरियां, इन तमाम बिरादरियों के दूल्हे एक स्टेज पर एक साथ इस फाउंडेशन ने काम किया। वरना होता क्या है, खाटिक समाज की अलग इज्तिमाई शादी होती, मनियार बिरादरी की अलग होती, पटेल बिरादरी की अलग होती, बागबान बिरादरी की अलग होती। खैर बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन इन्होंने एक अच्छा काम ये किया और बता दिया कि इस्लाम बिरादरीवाद को पसंद नहीं करता है। फिर मेरी ही अध्यक्षता में वो प्रोग्राम हुआ कल का, तो मैंने खुल कर बताया कि इस्लाम में बिरादरीवाद नहीं है। अल्लाह खुद कहता है कि मैंने बिरादरियां सिर्फ पहचान, शनाख्त और तारुफ के लिए बनाई है, इससे ज्यादा उसका कोई मकसद नहीं है। कोई बिरादरी ऊंची नहीं, कोई बिरादरी नीची नहीं, कोई सैयद नहीं और कोई पटेल खटकी नहीं। अल्लाह की निगाह में सब एक जैसे हैं। अल्लाह की निगाह में सबसे ऊंचा मकाम उसका है जो मुत्तकी हो, परहेजगार हो, अल्लाह से ज्यादा डरने वाला हो, फिर वो चाहे किसी बिरादरी का हो। लेकिन अहले ईमान में भी ये ऊंच नीच मुसलमानों में भी आ गई है, जो ब्राह्मणों वाली घटिया सोच है। हमारी सोच नहीं है, इस्लाम की सोच नहीं है। प्यारे नबी ने तो सबको गले से लगाया और इस्लाम में कहीं ऊंच नीच का जिक्र तक नहीं है। तो खैर कल बहुत अच्छा काम हुआ, तमाम बिरादरियों के निकाह एक स्टेज पर हुए। यशस्वी फाउंडेशन ने ये बेहतरीन काम किया, मैंने उनके कामों का भी जिक्र किया और फिर कल के प्रोग्राम में हमारे शहर के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। मैं खुद सदर था, मेरी बिरादरी के माजी महाराष्ट्र के अध्यक्ष हाजी उस्तुद्दीन भी तशरीफ़ लाएँ, लुकमान सर भी तशरीफ़ लाएँ और ऐसे ही मेरे बड़े भाई हाजी शमशुद्दीन साहब और निसार जनाब, सादिक मेंबर और जितने भी लोग हैं, हमारे आयशा मसाला वाले मकसूद हाजी मकसूद साहब, तमाम के तमाम लोग स्टेज पर मौजूद रहे। और दूसरे बिरादरियों में से मनियार बिरादरी के अध्यक्ष जनाब फारूक शेख साहब, पटेल बिरादरी के इब्राहिम मुसफ पटेल साहब, बागबान बिरादरी के खालिद बाबा बागबान, महमूद भाई और काकर बिरादरी के रियाज काकर, ये तमाम के तमाम लोग तशरीफ लाए। वसीम शाह बापू और ये तमाम की तमाम आए। बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा। सब ने यशस्वी फाउंडेशन के इस अच्छे काम को खूब बधाई, खूब मुबारकबाद पेश की और फिर आखिर में खुतबा निकाह मैंने पढ़ा और दुआ पर यह शानदार प्रोग्राम खत्म हुआ। डॉक्टर अली जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट करें। हकीम फरीद, पुरानी से पुरानी बीमारी का जड़ से इलाज, वो भी 72 घंटे के अंदर। जैसे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर कितनी ही बड़ी हुई हो 3 दिन में नॉर्मल। इसके अलावा बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, खुजली, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कॉन्टैक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट